Matrices. We are on chapter 2, exercise 2.2. I'm starting with question number 7, where we have to start with symmetric matrix. We are going to use the properties of symmetric matrix as well as skew symmetric matrix. What is symmetric matrix? It is a matrix in which diagonal may be anything, but the value opposite to the diagonals are equal. Suppose यहाँ पे अगर मैं b लिख रहा हूँ तो यहाँ पे b नहीं, I'll do with some other letter. If I'm writing p over here, यहाँ पे p रहेगा. If I'm writing q over here, इसका diagonally opposite q रहेगा. If I'm writing r over here, तो here we have r. तो मतलब तुम्हारे पास diagonal के दोनों साइड जो वैल्यू रहेगी, जैसे ये p है तो यहाँ पे ये p रहेगा, ये q है, so this is your q and this is r, this is your r. मतलब डायगोनल के अपोजिट साइड वैल्यूज क्या रहेगी, सेम. दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. द अदर इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डायगोनल ए बी सी कैन बी एनीथिंग, but the values opposite to the diagonal will be symmetric, will be equal. So there is only one condition. But when we have skew symmetric matrix, when we are going in skew symmetric matrix, so for skew symmetric matrix there must be two conditions. There must be two conditions. The first condition, that diagonal must be 0. First condition is diagonal must be 0. Second condition, the values opposite to the diagonals, the value opposite to the diagonals are equal but opposite in sign. If I'm writing this is my p, so it should be minus p. If this is I'm writing minus q, suppose, so it will be q, only opposite sign. अगर ये r है, so it will be minus r. So this is called as skew symmetric. So in skew symmetric, the values diagonal must be 0 and the values opposite to the diagonals are equal but opposite in sign. Symmetric matrix में there is a result that A transpose is always equal to A. This is for symmetric matrix. And for skew symmetric matrix, A transpose is equal to minus of A. So these are the two results that we are going to use in the few sums, in the next few sums. So question number 7. Find A, B, C if the given matrix is a symmetric matrix. तो यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है कि जो 7th क्वेश्चन में मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. तो here we have a matrix. It's 1, 3 by 5 A, B, -5, -7, -4 C and 0. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो इसका मतलब डायगोनल के अपोजिट वैल्यू सेम रहेगी. तो अगर देखा जाए तो अगर ये वैल्यूज बी है तो दिस इज माय 3/5, मतलब बी और 3/5 इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. If it is symmetric matrix, the value opposite to the diagonals are equal. So we can say that B is 3/5. Again, जो A रहेगा वो -4 के इक्वल होगा एंड जो तुम्हारा C रहेगा दैट विल बी -7 के इक्वल रहेगा. ठीक है. सो वी हैव A, B एंड C. 8th question. So
So this, by just seeing the values, you can easily get the values of A, B, C, the unknown values. The same thing we have question number 8. Find X, Y, Z if the given matrix is a skew symmetric matrix. So initially we have symmetric matrix. Now we have skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, there are two conditions. The diagonals are 0, मतलब skew symmetric में तुम्हारे पास सबसे पहले diagonals हमारे 0 होने चाहिए. And second condition is the values opposite to the diagonals are equal but opposite in sign. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन तो डेफिनेटली वेरीफाइड है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक बोला है. एंड वैल्यूज अपोजिट टू द डायगोनल्स आर इक्वल एंड साइन अपोजिट. तो अगर ये y को अगर मैं देखा जाए तो अगर ये -5y है तो यहाँ पे 5y होना चाहिए. तो इसका मतलब y मस्ट बी 5y. x देखा जाए तो अगर ये 3/2 है तो जो x रहेगा दैट शुड बी अपोजिट साइन, दैट इज -3/2. तो अगर ये x का पार्ट हो गया. इन इफ आई टेक z तो ये -√2 है तो z मस्ट बी √2 अपोजिट साइन. So that's your answer, that X, Y, and Z. Question number 8. Question number 9. For each of the following matrices, find its transpose and state whether it is symmetric, skew symmetric, or neither. So I'll have to check ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करना और फिर चेक करना कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नीदर है. तो सबसे पहले विल फाइंड द ट्रांसपोज. फर्स्ट क्वेश्चन ए. 1 2 -5 2 -3 4 and -5 4 and 9. So first I will find its transpose. Transpose means row becomes column. So first row become first column, second row becomes second column, and third row become third column, -5 4 and 9. So now we'll check transpose लेने के बाद again if you are getting the same matrix it is called a symmetric matrix. So अगर मैंने transpose लिया, this is my AT. Transpose कैसे लिया? The row becomes column. The first row becomes, this is my first row, that becomes my first column. Second row 2 -3 4 becomes second column, 2 -3 4. And third row which is -5 4 9 becomes my third column, -5 4 9. So in this way you are writing the transpose. तो अब चेक करेंगे क्या अगेन यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स. 1 2 -5, यस फर्स्ट रो आइडेंटिकल है. 2 -3 4 2 -3 4 सेकेंड रो भी आइडेंटिकल है. -5 4 9 -5 4 9 थर्ड रो भी आइडेंटिकल है. इट मीन्स दैट my A transpose is equal to A, and this condition represent for symmetric matrix. So we can say that A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. तो अगर A transpose is equal to A आ रहा है मतलब वो symmetric matrix है. Second, this is my matrix. Again A ले लेते हैं. 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 and 3. ठीक है. So now we'll have to check for the same thing. I'll find its transpose. Transpose. So first row becomes first column, 2 5 1. Second row becomes second column, -5 4 6. And third row becomes third column, -1 -6 and 3. So फिर चेक करते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है क्या. तो यहाँ पे अगर मैंने देखा इट्स अ 2 5 1. 2 -5 -1 है मतलब वैल्यू सेम नहीं आ रही है. 2 5 1
2 -5 -1, अगर माइनस आ रहा है तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इफ आई टेकिंग माइनस कॉमन, सो विल चेक माइनस कॉमन लेने के बाद क्या सेम आ रहा है सब। इफ आई टेक माइनस कॉमन तो सबका साइन चेंज होगा, -2 5 1 -5 -4 6 -1 -6 एंड -3। सो अभी चेक करेंगे माइनस लेने के बाद अगर कॉमन आ रहा है, देखते हैं। तो फर्स्ट रो में ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, नेगेटिव आ रहा है। सेकेंड रो में -4 ये अलग आ रहा है, एंड थर्ड रो में माइनस, मतलब डायगोनल सब अलग आ रहे हैं, बाकी तो वैल्यू सेम है। बट स्टिल अगर ए ट्रांसपोज अगर मैच नहीं हो रहा, अगर तुमने माइनस लिया तो भी अगर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिकली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए होता है। और अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो ए इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0 1 + 2i i -2 -1 -2i 0 -7 2 i 7 and 0. Let's start. I'll find its transpose. So if you are finding the transpose, so row becomes column. 0 1 + 2i I -2, the first row. Second row, -1 -2i 0 and -7. Third row, 2 i 7 and 0. सो ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 1 + 2i 0 और मेरा सेकेंड टर्म -1 -2 है, सेम नहीं है। आई टेक माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेना मतलब सबका साइन चेंज होगा। 0 ये हो जाएगा 1 + 2i, ये हो जाएगा -2 + i, मीन्स i -2 लिख देते हैं। ये हो जाएगा दोनों साइन चेंज, -1 -2i, तो माइनस कॉमन लेने पे ईच टर्म का साइन क्या होगा, चेंज होगा। 0 -7, this is -i + 2, or else 2 - i, this is +7 and this is 0. तो एज यू कैन सी ट्रांसपोज लेने के बाद तुम्हारे पास पूरी वैल्यूज, ये पूरी वैल्यूज मैचिंग विद दिस। 0 1 + 2i i -2, यस। सेकेंड रो भी कंप्लीटली मैच हो रहा है और थर्ड रो भी कंप्लीटली मैच हो रहा है। सो हियर आई हैव द रिजल्ट दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, सो वी कैन से दैट a is skew symmetric matrix. This is the condition for skew symmetric matrix. Okay. Now let's start with question number 10th. Construct a matrix. Here, construct the matrix A, which is Aij. This we done in first exercise. तो यहाँ पे थोड़ा सा इन एडिशन है, तुम्हें मैट्रिक्स बनाना है विच इज 3/3, जिसमें Aij फंक्शन इज गिवन एज I - j. State whether A is symmetric or skew symmetric matrix. So first we'll construct the matrix. So this is my matrix of Aij 3/3. So it will be 3 rows and 3 columns, A11, A12, A13. This is my first row, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So this is 3/3 matrix in which Aij is given as I - j. ठीक है, अब मैं हर एक वैल्यूज निकालूंगा, A11 निकालूंगा, A11, A11 मीन्स I और J 1 1 है, तो 1 1 0। तो मेरा जो फर्स्ट मैट्रिक्स आया वो 0 आया, फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी। आई विल कैलकुलेट A12,
मतलब I और J की वैल्यू पुटअप करना है 1 एंड 2, I1 और J2 -1. Then I will calculate A13 I minus J, which is 1 minus 3 minus 2. So first value 0, -1 and -2. Second, A21 A21, which is I minus J, 2 minus 1. A22 I minus J, 2 minus 2. A23 I minus J, which is 2 minus 3. So 1 0 minus 1 is my second row. I will calculate third. A31 A32 and A33. A31 3 minus 1 2. A32 3 minus 2 1. A33 3 minus 3. So my third row is 2 1 0. Okay, then once you have the value of A, then we'll check whether it is symmetric or skew symmetric. To have this, we'll find its transpose. तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूँ, A transpose. So the first row 0 minus 1 minus 2. First row becomes first column. Second row 1 0 minus 1. 1 0 and minus 1. Third row is 2 1 0. So that I can say that A transpose is equal to A. Again same matrix मिल रहा है, नहीं A नहीं आ रहा है. It means minus common लेना पड़ेगा और फिर चेक करेंगे. If I'll take minus common, so it will be 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 2 1 and 0. अब सेम आ रहा है, yes exactly same आ रहा है. So A transpose is equal to minus of A, and this condition is for skew symmetric. So A is skew symmetric matrix. That's it. This is question number 10. Question number 11th and 12th दोनों सिमिलर ही है, जिसमें तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर x एंड y इफ 3x minus y is this and x minus 3y is this. एंड सेम यहाँ पे जो एक्स वाई था, यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी निकालना है. एंड अगेन वी हैव टू कंडीशंस और टू मैट्रिक्स इक्वेशन. अब टू मैट्रिक्स इक्वेशंस तुम्हें ए और बी कैसे निकालना है. मैं 12th सॉल्व कर रहा हूँ तो 11th ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेम टाइप का है. 11th मैट्रिक्स 2 by 2 है, तो इसलिए मैं 12th कर रहा हूँ. फॉर क्वेश्चन नंबर 12th 2a minus b is my 6 minus 6 0. First matrix. So we got two matrix. First matrix equation, second, and we have to solve these two equation to get the value of a and b. तो आई थिंक जैसा करते हैं नॉर्मली साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. b को इक्वल करेंगे या इवन a को भी कर सकते हैं. तो आई डू b को इक्वल करेंगे. तो यहाँ पे 2b है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2. तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ईच टर्म को होगा, मतलब 2 a को भी होगा, b को भी होगा, इवन इस मैट्रिक्स को भी होगा. So if you are multiplying with 2, so the whole thing will get changed. The equation will become 2 2s are 4a minus 2b. और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 into 0 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. And second it will be a minus 2b, 3
टू 8, -2 1 एंड -7। उसके बाद दोनों अगर 2 भी सेम हो गया है, सो नाउ विल डू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों साइन सेम है, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, सो 2b एंड 2b कैंसिल, 4a माइनस a विल बी 3a। तो मैंने b को सेम किया और कैंसिल किया, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो मैट्रिक्स का, 12 -3 -12 -2, 0 -8 -8 minus of -2, 4 -1, 2 minus of -7 which is plus 9। So finally a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, 1/3 of the whole matrix which is 9। चाहो तो 3 से अंदर डिवाइड करो, अगर नहीं करोगे यहाँ पे स्टॉप करोगे तो भी चलेगा। अगर सब नंबर 3 के डिविजिबल हुए तो डिवाइड कर देना, अगर कुछ हुए और कुछ नहीं हुए तो अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ मतलब 1/3 मल्टीप्लाई अंदर नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिलहाल इस केस में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। सो इट इज 3 -14/3 -18/3 और बाकी 2 1 और 3। तो मेजोरिटी नंबर डिवाइड हो रहे थे इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी में, अगर यहाँ पे भी तुमने आंसर रोक दिया या स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा। तो ये मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है साइमल्टेनियस में, अगर तुम्हें ए की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो तुम अवॉइड करो डायरेक्टली, जैसे हमने पूरा सॉल्व किया फॉर ए, सिमिलरली पूरा सॉल्व करो फॉर बी सेम वे में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को। क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन में वैल्यूज कभी कभी रॉन्ग हो जाती है मैट्रिक्स में। सो बेटर वे है, जैसे हमने ए के लिए सॉल्व किया, बी को इक्वल करके रिमूव किया, अभी बी सॉल्व करना है तो ए को इक्वल करके रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को लूंगा फर्स्ट और सेकंड, इस बार ए को सेम करूंगा, तो मतलब सेकंड इक्वेशन में आई विल मल्टीप्लाई विद 2। तो सेकंड इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो सेकंड इक्वेशन चेंज होगा, दैट इज 2a -2 2 जा 4b, और ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 6 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रखेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। 6 -6 0 -4 2 और 1, will change the sign, this is minus plus and minus, 2a and 2a will get cancelled, -4b plus b which is -3b, will do subtraction, 6 minus 6 0, 4 minus minus 6 10, 16 minus 0 16, -4 plus 4 0, 2 minus 2 0, -14 minus 1 -15। पहले माइनस को ट्रांसफर करो, तो माइनस ट्रांसफर होगा मतलब सबका साइन, जो भी एलिमेंट्स है सबका साइन चेंज होगा, 0 -10 -16 0 0 एंड 15। नाउ 3 विल ट्रांसफर, सो बी, तो 3 को वहां ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो बी विल बी इक्वल टू 0 -10/3, मतलब 1/3 आगे आएगा और वही 1/3 आगे डिवाइड कर रहा हूँ। स्टिल अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंड हियर इट इज 0 0 एंड 5, दैट्स इट। So this is how we will get the value of A and B। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें डाउट होना चाहिए, कुछ डिफिकल्ट, इजी है, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
13th. फाइंड एक्स एंड वाई इफ, यहाँ पे तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो एक्स और वाई मैट्रिक्स के अंदर है, सो ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है. आई एम रीडिंग फर्स्ट इक्वेशन, 2x+y -1 1 3 4y 4 प्लस आई हैव टू ऐड, क्या ऐड करना है, -1 6 4 3 0 3 3 5 5 6 18 एंड 7. तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स में दिया वो अप्लाई करेंगे, ऐड करना, दोनों को ऐड करो. सो फर्स्ट वैल्यू 2x+y -1, एलिमेंट विथ एलिमेंट, -1 + 6 1 + 4 3 + 3 4y + 0 which is 4y 4 + 3 and यहाँ पे as it is all the values 3 5 5 6 18 and 7. Here I'll write on equality of matrix. इससे क्या होगा, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, बीच में इक्वल टू साइन है, तो उनके एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे. तो दैट इज 2x+y -1, द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई 3, और 4y जो यहाँ पे पोजीशन है इट विल बी इक्वल टू 18. तो y की वैल्यू मिलेगी 18/4 विच इज 2 9 2 2 9/2, और y की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे 2x + 9/2. इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x+y -1 वहां जाएगा, 3 + 1 4. अब इसमें y की वैल्यू आई विल सब्स्टिट्यूट एज 9/2, that is 2x is equal to 4 - 9/2, 4 is 8, 8 - 9 which is -1/2. तो x की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा which is -1/4. Thus in this way we are going to find the value of x and y. 14th क्वेश्चन भी सेम है, जहां पे तुम्हें अभी a b c d चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. Again we are going to use the concept of equality of matrix. 2a + b, 3a - b, c + 2d and 2c - d. This is 2 3 4 and -1. Again I will write on equating और on equality of matrices, दोनों में से लिख सकते हो. on equating लिखेंगे तो भी चलेगा. So on equating you will get 2a + b is equal to 2, second element 3a - b equal to 3, c + 2d equal to 4 and 2c - d equal to -1. तो ए बी का पेयरिंग साथ में रखेंगे और जो सी डी का पेयरिंग है उनको साथ में रखेंगे, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एक साथ. तो यहाँ पे तो अच्छा बी से में ऐड कर देंगे तो कैंसिल, 2a + 3a 5a, सो a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू पुट अप कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड में. तो b इक्वल टू 2 - 2, तो b इज इक्वल टू 0. अब सिमिलरली यहाँ पे c और d को निकालेंगे, बट दोनों में c या d दोनों ही सेम नहीं है, तो d में मतलब सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो सेकेंड इक्वेशन में 2 का करेंगे, 2 2 ज़ा 4c
2D और -2, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज इसके नीचे लिख दो, दोनों को ऐड कर देंगे सो दैट 2D और 2D कैंसिल हो जाएगा, तो 4C प्लस C विच इज 5C, -2D प्लस 2D, -2 प्लस 4 विच इज +2, तो C इज इक्वल टू 2/5 और C की वैल्यू विल पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो 2D इज इक्वल टू 4 - 2/5, 5 4 is 20, 20 - 2, 9/5, that's it. So this is C and D. तो इन क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तुम्हें निकालना है कि इंक्रीज इन सेल, तो जुलाई से अगस्त में कितना इंक्रीज इन सेल वो निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर इंक्रीज इन सेल्स, इट विल बी व्हाट, अगस्त माइनस जुलाई, तो अगस्त में से जुलाई का सेल्स लेस कर देंगे, सेल इन अगस्त, और यहाँ पे लिखेंगे सेल इन जुलाई, अगस्त का सेल माइनस जुलाई का सेल, तो दैट इज 6650, 7055, 8905, 7000, 7500 -10200, तो ये अगस्त का सेल दैट इज मैट्रिक्स बी, और इसमें से मैट्रिक्स ए को लेस करेंगे, 5600, 6750, 8500, 6650, 7055, 8905, ठीक है, दोनों को लेस कर देंगे, लेट्स डू दिस सब्ट्रैक्शन, तो 6650 -5600 which is 1050, 7055 -6750, 250 plus 55, 305, 8905 और 8500, तो 405, 7000 -6650, 350, 7500 and 7055, 445, 10200, 8905, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5921, 1295, तो जो ऊपर का शॉप है दैट रिप्रेजेंट सुरेश, एंड जो नीचे का शॉप है दैट रिप्रेजेंट गणेश, ठीक है, तो और ये ऊपर क्या क्या शॉप है, ये फिजिक्स का सेल है, ये केमिस्ट्री का, और ये मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, तो ये तो मैट्रिक्स फॉर्म, या तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, नीचे वर्डिंग में भी लिख सकते हो, therefore इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ सुरेश is equal to 1050 in physics, 305 in chemistry and 405 in mathematics. Increase in the sales of Ganesh shop, तो उसमें क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन फिजिक्स 350 इन फिजिक्स, 445 इन केमिस्ट्री एंड 1295 इन मैथमेटिक्स, तो अगर वर्डिंग में लिख रहे तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे स्टॉप करके मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला, इफ द bookshop get 10% profit in the month of August 2017, find the profit for each book seller in each subject in that month, तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, समझो कि अगर बुक 1000 की 3,
सेल करने पे उसको 10% प्रॉफिट, तो 10% मतलब 10/100, 0 0 कैंसल, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, अगेन ये 0 कैंसिल, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना तो मैंने क्या किया, 1000 का 10%, 10% मतलब 0 0 कैंसिल, मतलब 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट डायरेक्टली द प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेम वे में मैं सॉल्व करूंगा, विल राइट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2007। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। सो हियर विल राइट परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, that is 10%. So here I will write profit in month of August, that is 10% of B, क्योंकि B अगस्त का सेल है, 0 0 कैंसिल, 1/10 ऑफ B। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/10 ऑफ B निकालना, मतलब 1/10 ऑफ जो मैट्रिक्स B है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देना, विच इज 6650 7055 8905 7000 7500 665 705.5 0.5 700 750 1020। तो दिस इज माय प्रॉफिट, मतलब सुरेश एंड गणेश बुक शॉप का प्रॉफिट है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे मिल रहा प्रॉफिट फॉर सुरेश बुक शॉप। तो सबसे पहले किसमें लिखेंगे, फिजिक्स में कितना हुआ, 665 665 इन फिजिक्स, रुपीज 665 इन chemistry, rupees 705, and in mathematics 890। ये हुआ फॉर सुरेश बुक शॉप। सिमिलरली आई कैलकुलेट फॉर गणेश, तो प्रॉफिट फॉर गणेश बुक शॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे इन फिजिक्स, इन केम एंड इन मैथ्स। फिजिक्स में कितना रहेगा, इट्स 700, केमिस्ट्री में इट्स 750 and it is 1020। That's it. So these are your answer। ठीक है, so here our second exercise is completing। Now the third exercise it deals with the multiplication। So जो ICSE में रहेंगे उनको पता रहेगा how to do multiplication, but still again I'll repeat it over here। I'll go with the basic। multiply कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी इजी है। क्यों इजी है, बिकॉज इसमें अगर तुम्हें बस इतना चेक करना है, इफ यू हैव, इफ द बोथ द मैट्रिक्स आर हैविंग सेम ऑर्डर, तो यू जस्ट नीड टू ऐड, बस ऑर्डर सेम चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इन मल्टीप्लीकेशन इट इज बिट डिफरेंट एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है,
So here I'm starting with the multiplication. देखो मल्टीप्लिकेशन में वी हैव मैट्रिक्स ए, say it is 3 by 3, A B C D E F G H I. We have one more matrix, that is my B, which is P Q R U V W X Y Z. ठीक है, and what we have to do, we have to multiply them. मतलब A और मैट्रिक्स B का मुझे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करना तो सबसे पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू चेक, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का आई विल राइट द ऑर्डर. यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3, सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3. सो यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट होता है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड वैल्यू और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है, if they are equal, so we can say that these matrix can be multiplied. मतलब मल्टीप्लाइड हो सकता है. ठीक है, तो बस ये चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों सेम है, दे आर इक्वल, सो डेफिनेटली इट विल बी मल्टीप्लाइड. और मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा, अगेन यह मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट होता है, मतलब इट विल बी 3/3. तो मतलब जो आंसर आएगा वो 3/3 फॉर्म में ही आएगा. तो वो आंसर का रिजल्ट बताने के लिए कि ऑर्डर क्या रहेगा, बट चेक करने के लिए विल स्टार्ट विद दिस ओनली, द टू सर्कल. इफ दिस टू सर्कल्स आर इक्वल, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, देन ओनली द मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे दोनों 3 है, मतलब मल्टीप्लाइड होगा. नाउ आई विल शो यू विथ मल्टीप्लीकेशन. A B C D E F G H I P Q R U V W X Y and Z. देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या है. इफ यू क्लियर कि मल्टीप्लाई होगा, सो मल्टीप्लाई का रूल ये है कि ऑलवेज वी मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स का रो is multiplied with the column of the second matrix. तो यहाँ पे आई विल शो विद द वर्किंग. फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में डिवाइड करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स को कॉलम में. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, सो नाउ विल मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वैल्यू को. तो इफ आई मल्टीप्लाइंग विथ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, सो विल मल्टीप्लाई ये 3 एलिमेंट ये 3 एलिमेंट के साथ. तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, और तीनों को ऐड कर देंगे. हियर आई विल राइट इट्स AP BU CX. सिमिलरली फर्स्ट रो का भी सेकंड में जाएंगे, एंड ऑलवेज विल कीप एडिशन. AQ प्लस BV प्लस CY, AR प्लस BW प्लस CZ. ये हो गया फर्स्ट रो का तीनों में. Now we'll do the same thing with the second row. DP EU FX. फिर सेकेंड कॉलम में आएंगे DQ FY and FDR EW and FZ. Now we'll multiply the same thing with the third row. GP
HU IX GQ HV plus IY GR HW plus IZ. So in this way we have to multiply. बस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सेट बाय सेट, एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तीन एलिमेंट था तो सबको ऐड करना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द मैट्रिक्स। सबसे पहले चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड टू मल्टीप्लाई। नाउ आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। अब वो प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। So let's start with the first question. I'll show full working over here. It's a 3 2 1 2 minus 4 3. So इसका ऑर्डर 3 रोज एंड 1 कॉलम, इसका ऑर्डर है 1 रोज एंड 3 कॉलम। तो यस 1 एंड 1 मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई का रूल भी है कि वी ऑलवेज मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो विल मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट है दोनों, फर्स्ट सेट में भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6। फिर आगे स्विच करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में अगेन एक ही की एलिमेंट है, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा -12 एंड 3 3 9। सिमिलरली सेकेंड रो विल मल्टीप्लाई विद द 3 कॉलम, 2 2 4 2 4 8 and 2 3 6. This will multiply with the again the 3, 1 2 2, 1 minus 4 and 1 3 3. That's it. So this is the way to multiply two matrix. Let's start with the second. This is 2 minus 1 and 3, 4 3 1. Again we'll check कि multiply होगा कि नहीं। तो सबसे पहले it's 1 row into 3 column. This is 3 rows into 1 column. So again 3 और 3 सेम है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस सम्स में तुम्हें बता दूं कि जो मेरा ये आंसर है 3/3 दैट रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ द रिजल्टेंट 3/3। तो एक बार तुम लोग ये भी वेरीफाई कर लेना कि आंसर मैच हो रहा है क्या, उस फॉर्म में आ रहा है जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं चेक करूंगा ये 3 और ये 3, यस दे आर सेम, सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो जो आंसर रहेगा वो 1/1 आना चाहिए। 1/1 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम विच रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू ओनली। तो यस मल्टीप्लाई होगा तो रो एंड कॉलम में डिवाइड करो। फर्स्ट मैट्रिक्स में तो एक ही रो आया और सेकेंड मैट्रिक्स में अगेन वी हैव 1 कॉलम, तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट, तो पूरा एक सेट होगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। रूल याद रखो, पहले मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। 2 4 8 -1 into 3 -3 3 1 3, तो आंसर आएगा कैंसिल, तो इट इज 8 which is 1/1, that's it. Second question, we have matrix A, matrix B. State whether AB is equal to BA, justify your answer. तो तुम्हें चेक करना है कि AB और BA इक्वल है क्या। सो फॉर दैट फर्स्ट विल कैलकुलेट AB एंड देन विल कैलकुलेट BA, और फिर दोनों मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स सब सेम आ रहे हैं, सो वी कैन से दैट द मैट्रिक्स आर इक्वल। So let's start finding AB. AB means A matrix के element will multiply with B matrix. -1 1 1 2 3 0 1 -3 and 1 2 1 4 3 0 2
नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। दोनों 3 by 3 अगर आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई में 3 by 3 इजिली मल्टीप्लाई विद 3 by 3, 2 by 2 इजिली मल्टीप्लाई विद 2 by 2. So let's start multiplying. First matrix का row will multiply with the column. Starting a few sums में मैं working बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर directly I'll do it without doing this thing. So let's start multiplying. AB. First row with first column. So it will be -2 plus 3 plus 1 -1 plus 0 plus 2 -4 plus 2 plus 1. Now we'll do the same thing with the second row. 4 plus 9 plus 0, 2 plus 0 plus 0, 8 plus 6 plus 0. Now second, the last row. 1 2 is 2, -3 3 is 9 plus 1, 1 plus 0 plus 2, 1 4 is 4 plus -6 plus 1. 3 plus 1 4, 4 minus 2 is 2, 2 minus 1, 2 plus 1 3, -4 plus 3, 4 plus 9 13, 2 14, 2 plus 1 3, 3 minus 9, 1 plus 2, 4 plus 1 5, 5 minus 6 which is -1. So ये मेरा AB का हुआ. Now similarly I'll do it for BA. तो BA means B पहले लिखेंगे और A बाद में लिखेंगे. और याद रखो मैट्रिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि AB जैसे 3 into 4 12 और 4 into 3 भी करेंगे तो वो भी 12 ही आएगा. तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि AB और BA एवरी टाइम सेम रहेंगे, अलग भी हो सकते हैं. मैक्सिमम टाइम्स तो अलग ही रहते हैं, फ्यू केसेस में दे आर सेम. B अब पहले लिखेंगे. और यहाँ पे A. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. 2 1s are 2 -2 plus 2 1s are 2 plus 4 1s are 4. 2 1s are 2 plus 1 3s are 3 plus 4 3s are 12. And 2 1s are 2, 1 into 0 0, 4 1s are 4. ठीक है. 3 1s are 3, 0 into 2 0 plus 2 1s are 2. 3 1s are 3, 0, 2 3s are 6. 3 1s are 3, 0, 2 1s are 2. 1 into -1 is -1, 2 2s are 4, 1 1s are 1. 1 1s are 1, 3 2s are 6, 3 1s are 3. 1 1s are 1, 2 into 0 0, 1 1s are 1. 4 plus 2 6 minus 2, 4, 2 plus 3 5, 4 plus 2 6.
ठीक है, -3 + 2 which is -1, 3 - 6 which is -3, 3 + 2 5, 4 + 1 तो ये तो 4 ही रहेगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, एंड 6 + 1 7, 7 - 3 4, एंड लास्ट 1 + 1 2। तो ये मेरा बी ए का आंसर है और ये मेरा ए बी का था। आर दे इक्वल? नो, एक्चुअली कोई भी वैल्यूज नहीं है। इक्वल मीन्स व्हाट, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और दोनों में जो जो एलिमेंट्स है, मतलब एवरी एलिमेंट्स, एवरी 9 एलिमेंट्स, मतलब जो भी 9 एलिमेंट्स है, all 9 elements must be matched, then only we can say that matrix AB is equal to matrix BA। done। so अगर मैट्रिक्स इक्वल है, so we can इक्वल होता अगर सब एलिमेंट सेम होते, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, so AB is not equal to BA। this is for second। थर्ड क्वेश्चन में शो दैट AB is equal to BA, इसमें शो दैट बोला, मतलब तुम्हें आना ही चाहिए। तो सेम वे जैसा मैंने सॉल्व किया, AB का एक आंसर आएगा, बीए का भी आंसर आएगा, और दोनों सेम रहेंगे, दोनों आइडेंटिकल रहेंगे, एवरी एलिमेंट मस्ट बी मैच, सो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, सो दैट सम आई एम गिविंग एज अ प्रैक्टिस। थर्ड वन। फोर्थ, फोर्थ भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। A matrix and B matrix। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसे प्रूफ करना है कि वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए, यू हैव टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन से दैट इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग मैट्रिक्स ए which is 4 3 2 -1 2 0, और यहाँ पे 1 -1 1 2 0 and -2। will multiply row into column। this is my row and this is my column। मल्टीप्लाई चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि ए बी आंसर आएगा, उससे नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, सो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 4 1s are 4, first set with first set, first row with first column। 4 1s are 4, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 3 into 0 0, 2 2s are 4, -1 -2 plus 0, -2 plus 0 plus 0, 4 plus 2 6, 6 minus 3 is 3, 8 minus 4 is 4, -1 -2 is -3 and -2। this is my AB। I will find its determinant to check whether it is singular or non-singular। So उसके लिए हम लोग उसका determinant निकालेंगे ए बी का। So here I will write the determinant sign। Matrix को I am changing in determinant। 3 4 -3 -2। So 3 into -2, 4 into -3, 3 2s are 6, 4 3s are 12, but plus हो जाएगा। The answer is 6। 6 आया मतलब determinant is not equal to 0। Determinant of AB is not equal to 0, so we can say that AB is non-singular matrix। AB is non-singular matrix। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारे पास A plus I दिया है। The matrix A plus I is 1 2 0। ये मैट सम इजी है, बट इसमें थोड़ा लॉजिक है। 0 7 and -3।
फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस आई को ए माइनस आई में। ए प्लस आई इज गिवन, ए माइनस आई वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, और वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो ए माइनस आई के लिए मेरे पास दो वे, पहला वे ये, आई विच इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको मैं वहां लेके जाऊं, माइनस आई कर दूंगा, आई मतलब वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आई अगर मैंने वहां पे लेस कर दिया, और अगर ए मिल गया तो उसमें से माइनस आई लेस करना है, तो मतलब उस ए में से आई विल लेस 1 0 0 अगेन आई की वैल्यू, उससे मुझे ए माइनस आई मिल जाएगा, और फिर ए प्लस आई को ए माइनस आई से लेस कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, फिर से बता दे रहा हूँ। मेरे पास ए प्लस आई दिया हुआ है मैट्रिक्स, पहले मैं आई को वहां ट्रांसफर करूंगा, तो वो मैट्रिक्स माइनस आई, आई इज माई आइडेंटिटी विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो लेस करना तो इजी रहेगा, उससे मुझे ए मिल जाएगा, बट मुझे ए माइनस आई चाहिए क्वेश्चन में, तो जो तुम्हारा ए आया उसमें से फिर आई को लेस करेंगे, वही 1 0 0, तो तुम्हें ए माइनस आई का एक मैट्रिक्स मिलेगा, और उस ए माइनस आई को ए प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट वे है, बट वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें शॉर्टकट रहती है तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, उतना इजीली नहीं आता जल्दी। अब वो शॉर्टकट वे ये है, मुझे ए माइनस आई निकालना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए माइनस आई जो मुझे फाइंड आउट करना है, इसमें मैं माइनस आई भी करूंगा और प्लस आई भी करूंगा, व्हाट आई डिड, माइनस आई भी करूंगा और प्लस आई, ताकि सम का मीनिंग चेंज ना हो, इफ यू आर डूइंग माइनस यू हैव टू डू प्लस, ठीक है, तो माइनस आई विच इज -2i, तो -2i अलग कर दो, और a प्लस आई उसको साथ में लिख दो, तो फाइनली जो मेरे पास a माइनस आई था उसको मैंने कुछ ऐसा रीअरेंज किया, आई गॉट a प्लस आई -2i, इट मींस प्लस आई में से 2i लेस करूंगा इन शॉर्ट, तो माइनस आई ही मिलेगा, मतलब अभी भी इक्वेशन वही है, मतलब a माइनस आई को मैंने रीअरेंज करके a प्लस आई ऑफ -2i, तो हियर आई विल राइट a प्लस आई की वैल्यू, here I will write 2 times of I की value. A plus I already given in the questions, 1 2 0 5 4 2 0 7 and -3. I की value is 1 0 0. Okay, now we do this calculation. ये वैसे ही रहेगा सेम, -2 का मल्टीप्लाई करना है 2 0 0. Okay, let's do this subtraction. 1 minus 2 minus 1, 2 minus 0 2, 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 4 minus 2 is 2, 2 minus 0 is 2, and 0 minus 0 7 minus 0 and -3 -2. A minus I मिल गया मुझे, and at the end we'll have to multiply them, that is A plus I will multiply with A minus I, so here A plus I will multiply with A minus I. A minus I already screen पे है, तो -1 2 0 5 2 2 0 7 -5, और A plus I की वैल्यू 1 2 0 5 4 2 and 0 7 और -3. Let's multiply again row into column. Now everybody knows कि multiply कैसे करना है, अभी just multiply first row with first column. तो 1 into -1, 2 5s are 10, 0 into 0. First row with second column, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 into 7 0. Now we'll do the third. 1 into 0 0, 2 into 2 4, 0 into 5 0. 5 into -1 -5, 4 5 into -1 -5, 4 5s are 20, 2 into 0 0. Second row with second column, 5 2s are 10, 4 2s are 8, 2 7s are 14. 5 into 0, 4 2s are 8, 2 5s are 10. Second row with third row with first column, 0 7 5s are 35, 3 into 0. 0 into 2 0, 7 2s are 14, 3 7s are 21.
0 7 2 is 14, 3 5 is 15. 10 minus 1, 9, 2 plus 4, 6, 4. 15, 14 plus 8, 22 plus 10, 32. 8 minus 10 minus 2. This is 35. 14 minus 21 minus 7, 29. That's it. So this is your answer. Okay. So I don't think इसमें difficulty मैट्रिक्स भी kind of easy है. Just you need to focus कि multiply करते वक्त mistake नहीं होनी चाहिए. ठीक है. So here we'll stop our today's